السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کی رسی تھام لو۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں آزماتا ہی کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ذرا یہ سوچئے آپ کی اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو اللہ پاک سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ پاک سے ہم کلام کیسے ہو پاتے آپ؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتا ہے، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتا بس انہی کو ہے جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ پاک کو سزا ہی دینی ہوتی تو پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں ہے؟ ہاں، یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ پاک ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس نے کب کب آپ کو کس مشکل سے بچایا، بڑے بڑے طوفان سے کس طرح آپ کو محفوظ رکھا، جو دن بھر آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، جو دن بھر آپ کی نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی آپ سے منہ نہیں موڑتا، پھر بھی آپ کے لیے فرشتوں کے ہاتھوں رزق بھیجتا ہے، پھر بھی آپ کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ بھلا کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت؟ جانتے ہو جب اللہ پاک ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ آسائش نہیں چھینتا، وہ دلوں کو خالی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک تو دل میں ہوتا ہے نہ، تو جس دل میں اس کی محبت نہیں وہ دل کیسے روشن ہو سکتے ہیں؟ جان لو آزمائش وقتی ہوتی ہے، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے جڑ جائیں اتنی ہی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل وہ ہے توک۔ جہاں توک ہو وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توک ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمیں ہمت باقی نہیں تو جان لو وقت آزمائش اب بس ختم ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ دن بھر ہمارے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے، ہمارے اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، پھر بھی ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں۔ آخر کیوں؟ اللہ پاک دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنے قریب بلاتا ہے۔ دلوں کے حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ پاک جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسے سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے نہیں اس کے فیصلوں پر صرف زبان سے کہہ دینا توک نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اصرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توک ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ پاک تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخ نہیں ہو جاتے۔ اللہ پاک کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نہ امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ بات تو صرف ایمان، توک اور صبر کی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد
तुम्हारे लिए कितनी आसानियां लिख दी जाती हैं, तो तुम कभी भी अपने हाल पर नहीं रहोगे और बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम खुश हो जाओगे। सब्र में शिकवा नहीं होता, बस खामोशी होती है, और उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह पाक ही सुनता है, और वो फरमाता है, यह शक्ति बस कुछ ही वक्त की बात है। सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को उनके गुमान से बढ़कर अता करता हूँ। दुआओं से फौरन मोजे नहीं हो जाते, दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मुकाम तक लेकर जाती हैं जहाँ मोजे हो जाती हैं, जहाँ तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह पाक कुन फरमा देता है। और जिस दिन अल्लाह पाक तुमसे राजी हो गया, उस दिन तुम अपनी इन उदास आंखों से अपने नसीब का बदलना देखोगे और खुश हो जाओगे। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है, फिर वो कभी भी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है, वो बस एक दुआ का है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह पाक से कुन कहने की सिफारिश करता है। फिक्र न करें, सब्र करें, अल्लाह पाक आपको वो मुकाम देगा जो अभी तक नामुमकिन है। जब तक इंसान टूटता नहीं है, उसमें आजीज नहीं आती है। दिल में नूर तभी आता है जब वो टूटता है। जब इंसान ठुकराया जाता है, तभी वो अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो टूट कर अपने रब से जुड़ जाते हैं और उनके दिलों को मेरा अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत अता कर देता है। फिर वो दुनिया से भी नियाज हो जाता है। आंसू और खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ अल्लाह पाक ही सुनता है। आंसू और टूटे हुए दिल की कदर अल्लाह पाक से बेहतर कोई भी नहीं जानता। दुआ के साथ ऐसा जुड़ जाओ कि गोया उसके अलावा कोई इलाज आप जानते ही नहीं। दुआ मुकद्दर नहीं मांगती, तसल्ली है, या अल्लाह मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो जाए और मुझे जहनी सुकून अता कर और मेरे तमाम मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं पर कभी शक न करना, क्योंकि अल्लाह पाक कादिर है। नसीब बदलने पर, नामुमकिन को मुमकिन कर देने पर, बंद राहों को खोल देने पर परेशान ना हो, बस यकीन के साथ दुआ करते रहो। ला हासिल जल्द हासिल हो जाएगा। अल्लाह पाक के फैसलों पर मुतमैन रहें, क्योंकि अल्लाह पाक वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह पाक वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिसकी नमाज अच्छी उसकी जिंदगी अच्छी, जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी मौत अच्छी उसकी कब्र अच्छी, जिसकी कब्र अच्छी उसकी आखिरत अच्छी, उसकी जन्नत पक्की। दिल मुश्किल में डूबा हो, सोच फिक्र में उलझी हो, तो अल्लाह पाक से दुआ करना और इतना तवक्ल जरूर करना कि वो रब तुम्हारी दुआओं को ध्यान से सुनता है और जवाब भी देता है। वो जाया नहीं जाने देगा उन दुआओं को जो खुलूस दिल से मांगी जाए। कुरान का सफर आपकी इबादत को हर दिन बेहतर करता है, आपके सवालों के जवाब देता है, आपके हर गम पर तसल्ली देता है, आपको रिश्ते निभाना सिखाता है, आपको मुश्किल में बहादुर रहना सिखाता है। जो शिद्दत से मांगा जाए वो जरूर मिलता है। अल्लाह पाक आपकी तरफ जाया नहीं जाने देता। वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ है, और अगर नसीब में बेहतर हुआ तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। दुआओं में हकीकत पसंदी से काम नहीं लेते। अल्लाह पाक से मांगते हुए अपनी दुआओं को महदूद नहीं करते। जब उस बादशाह से मांगते हो तो खुलकर मांगते हैं, फिर मुमकिन या नामुमकिन का नहीं देखते। फिर यह नहीं सोचते कि आपकी दुआओं और आपके दरमियान कितने बुलंद पहाड़ रुकावट बनकर खड़े हैं, या फिर कितने मीलों के फासले हैं, या फिर कितनी खाया उबी करनी है अभी बाकी नहीं। जब तवक्ल करती हैं तो फिर यह सब नहीं देखते, बस फिर असबाब बनाने वाले की तरफ देखते हैं और उसकी शान और उसकी कुदरतों को जहन में रखकर उससे इल्तिजा करती हैं। जब अल्लाह पाक से उम्मीदें जोड़ती हैं तो फिर टूटने का खौफ नहीं रखते, क्योंकि आपके और आपकी दुआओं के दरमियान सारा मामला बस एक हुक्म का है, कुन हो जा फयाकुन, तो वो हो ही जाता है। जब हालात कंट्रोल से बाहर होने लगे, मुश्किलात सुलझा ना जा सक रही हो और हालात में बेहतरी आती नजर आ रही हो,
बेहतरी नजर न आ रही हो तो मायूस होने के बजाय उस मर्द मोमिन की तरह हिम्मत करके अपनी सख्त जितनी कोशिश करके अपने मामले को अल्लाह पाक के सुपुर्द कर देना चाहिए। जब अल्लाह पाक इंसान पर कोई मुश्किल भेजता है तो उस मुश्किल के साथ कोई न कोई ऐसी आसानी भी भेज देता है जो इंसान को उस वक्त मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने में हिम्मत देती है। कभी वो आसानी किसी इंसान की सूरत में होती है, कभी वो आसानी किसी अजनबी शक्ल की तहरीर की सूरत में होती है। उसे आप तक पहुंचाने वाला अल्लाह पाक है, क्योंकि अल्लाह पाक जानता है और वो अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह पाक अपने साबिर और मोमिन बंदे के दर्जा बुलंद करना चाहता है, चुनांचे अल्लाह पाक उसे मुसीबत में मुब्तला करता है ताकि वो अल्लाह पाक की आजमाइश पर राजी हो और सब्र करे। नतीजे में अल्लाह पाक उसे आखिरत में साबरीन के अजर से नवाजे और अपने यहाँ उसे कामयाब लोगों में लिख दे। वो जिसका नाम ही अल-सुबू है, यानी सब्र देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है। वो जिसका नाम ही अल-अलीम है, यानी जानने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारे दिल की कैफियत से बेखबर हो सकता है। वो जिसका नाम ही अल-राफी है, यानी बुलंद करने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें गिरा रहने दे सकता है। वो जिसका नाम ही अल-कादिर है, यानी कुदरत वाला, उसके लिए फिर तुम्हारे हर गुमान को हकीकत में बदलना भला क्या मुश्किल है। तुम्हारा काम है बस आंखें बंद करके उस पर कामिल यकीन कर लो और फिर उसके मौजज़ात देखो। अल्लाह पाक अब भी जानता है और उसे आगे भी सब पता है। तुम जिस हाल से गुजर रहे हो या गुजरे हो, कैसे पहुँचे हो यहाँ तक, उसे सब खबर है। कुछ ले लिया है तो सोचो कि देते वक्त तुम्हारे हर अधूरे खौफ का ख्याल रखेगा। इतना देगा कि गम भूल जाओगे। तुम बस खुशी याद रहेगी। तुम कैसे बर्दाश्त करोगे, कैसे सब्र और तवक रखोगे। यह सब तो जिंदगी है, यह नहीं देखोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। अल्लाह पाक तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और उन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह पाक को तुम्हारे बर्दाश्त की हद मालूम है और अल्लाह पाक कभी तुम्हें इस हद से ज्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह पाक कुन कहता है तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और दुआएं मुकद्दर पर भारी पड़ जाती हैं। पता है जिंदगी कब मुश्किल होती है, जब हम अल्लाह पाक के मुकर्रर किए गए वक्त पर अपनी मर्जी की टाइमिंग सेट करना चाहती हैं। जिस दिन हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया उसी दिन जिंदगी बदल जाएगी, सुकून मिल जाएगा, यकीन आ जाएगा। बेहतर है इस बात को समझ लिया जाए, वरना हमारे चाहने या न चाहने से वक्त और हालात बदल नहीं सकते। बदलते तभी हैं जब अल्लाह पाक चाहता है। रोते हुए मांगी जाए या मुस्कुराते हुए, हासिल हो या ला हासिल, अल्लाह पाक के लिए सारी दुआएं लाडली होती हैं। इसलिए जब भी दुआ मांगो यकीन के साथ मांगो, उसकी रहमतों और मुआजिजों पर यकीन रखकर मांगो। हम बेसुकून होते ही तब हैं जब हम अल्लाह पाक और अपने दरमियान फासला बढ़ा लेते हैं, और इस फासले को खत्म करने के लिए ही उसने हमें दुआ मांगना सिखाया। और यह मत भूला करें कि वो कभी भी अपने बंदों का बुरा नहीं चाहता। हम खुद ही अपने साथ ज्यादती करते हैं, हम खुद ही लाख नेमतों के बाद भी उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारी बेकदरी करती हैं और लापरवाही करती हैं। लेकिन फिर भी हम उन इंसानों के लिए जिद करते हैं जिनसे हमें तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए कुछ मामले अल्लाह पाक पर छोड़ना सीखें, उसकी रजा में राजी होना सीखें और उसके हुक्म का इंतजार करना सीखें। सिर्फ अल्लाह पाक ही है जो दिलों का बोझ उतार सकता है, दिल को सुकून अता कर सकता है। जब खालिक से दिल लगाना परेशान नहीं हुआ करता, क्योंकि फिर हम हर वक्त अल्लाह पाक को अपने पास पाते हैं। तो दुआ करो और करते रहा करो, क्योंकि दुआओं का चाहे रंग नहीं होता, मगर जब यह रंग लाती हैं तो जिंदगी में रंग भर देती हैं। दिल जो है ना, यह अक्सर बिला वजह अल्लाह पाक से शिकायतों के बहाने ढूंढता रहता है और उसकी अता की हुई नेमतों को ही भूल जाता है। हकीकत तो यह है कि हम उसकी मसलियतों को समझने की कोशिश ही नहीं करते, मगर जब हम अपने दिल को अल्लाह पाक की रजा में राजी करने लगते हैं
تو آہستہ آہستہ ہمیں اس کی مصلحت سمجھ آنے لگتی ہے، پھر اللہ پاک کی چاہت پہ ہی ہمیں اپنی چاہت محسوس ہونے لگتی ہے اور دل خود بخود ہی ساری ضدیں چھوڑ دیتا ہے۔ یقین رکھیں اگر اللہ پاک آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اللہ پاک آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا، اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگیں گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اس وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں، ہم ہی خود کا بہترین دلاسا، بہترین دوست اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی ہوتی ہیں۔ اور ایسا پتہ ہے کب ہوتا ہے جب ہم خود سے کام کرواتی ہیں یا اللہ پاک سے دعا کرتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ جب کچھ چیزیں اللہ پاک پر چھوڑ دی جائیں تو اس سے ہمت مانگا کرتی ہیں اپنے، اور وہ رب اتنا مہربان ہے، سمیٹ لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے۔ اور جب تمہیں لگے کہ تم کمزور پڑ رہے ہو تو اس وقت کو یاد کرنا جب کوئی نہیں تھا تمہارے پاس، تنہا تھے تم، اور پھر وہ امید، وہ صبر اور حوصلہ تمہیں گرنے کے بعد دوبارہ تھام کر کھڑا رہنے والا اور سہارا دینے والا بس وہ اللہ پاک ہی تھا۔ جو رب تمہیں دعاؤں تک لے آیا ہے وہ نصیب میں گنجائش بنا بھی سکتا ہے، وہ جو دن پر رات کو تاریک کرتا ہے وہ اندھیروں میں روشنی دکھا بھی سکتا ہے، وقت بھی اسی کے حکم سے چلتا ہے اور وہ وقت مسافت گھٹا بھی سکتا ہے، چاہے فرض پر تمام دروازے بند کر دیے جائیں وہ عرض سے مدد بھجوا بھی سکتا ہے، وہ جو سمندروں سے راستہ بنا دیا کرتا ہے وہ تمہاری راہ میں حال رکاوٹیں ہٹا بھی سکتا ہے۔ آزمائش تو اس تک لے جانے کا ذریعہ ہے، وہ صبر پہ مان جانے والوں کو شکر میں رلا بھی سکتا ہے۔ اصل بات تو تمہاری تڑپ کی ہے، ورنہ جو تم تک لے آئے وہ معجزے دکھا بھی سکتا ہے، وہ دیتا ہے بے شمار بے حساب، آپ کے ناشکر پن کے باوجود بھی دیتا رہتا ہے، وہ گنتا نہیں ہے، احسان نہیں جتاتا، ہاں پر آزماتا ضرور ہے، اور اس کی بھیجی ہوئی آزمائش میں کھڑا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر یقین مضبوط ہو تو مشکل بھی نہیں ہوتی۔ وہ تمہاری اور تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے، جب تم اس سے دعا مانگتے ہو، اسے اپنے ایمان کی حفاظت مانگتے ہو، وہ اس ایمان کو تمہارے لیے مضبوط کرتا ہے اور وہ تمہیں اور مضبوط بناتا ہے۔ بس یہی خاصیت ہے اس سے مانگنے کی، اور اس سے جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ایسے عطا کرتا ہے کہ تمہارا اس پر یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ بہت پیاری ذات ہے، جب یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی سمجھنے والا نہیں، دل کی کیفیت کو جاننے والا نہیں، پھر وہ اپنی کہانیاں صرف اللہ پاک ہی کو سنایا کرتی ہیں۔ دل تڑپنے پر وہ دل لے کر ہم اللہ پاک کے پاس ہی تو جاتے ہیں، اس کا مرہم ہم وہی تو پاتے ہیں، اس کو خوب سمیٹنا آتا ہے۔ تم سب اس پر چھوڑ کر تو دیکھو، صبر کر کے دیکھو، کیا پتا اللہ پاک کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہو۔ اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتا اسی میں تمہاری خیر ہو، تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی ہو، بس کچھ وقت قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہیں، اور پتا ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہیں، جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ سوچ کر کے اللہ پاک کی قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بندھے۔ اگر اللہ پاک نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ ابھی تک اللہ پاک کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو مطلب دعا مانگتے رہنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ پاک بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو۔ ہر وقت گزر جاتا ہے، ہر غم ہلکا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ گزرتے وقت دنوں اور مہینوں میں جو وقت ہوتا ہے یہ صرف گزارنے والے کو پتا ہوتا ہے۔ ہر چیز لکھنا، ہر چیز کہنا آسان ہے، اس پر پورا اترا جائے تو صرف اس پر اترنے والے کو پتا ہوتا ہے، اور صرف رب ہی تو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو سب جانے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے مانگ کر ہلکے ہو جایا کرو، انسنا نہیں
70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला अपने बंदों को अनसुना नहीं करता। वो तो बड़ा मेहरबान है, सुनता सब है, हिम्मत भी वही देता है, हर मुश्किल हल कर देता है बेशक। और फिर दुआ की कबूलियत का वक्त भी तो करीब आ जाता है। जब अल्लाह पाक आपका नसीब लिखता है तो वो उस नसीब में यह भी लिखता है कि इस तकदीर को मेरे बंदे की दुआओं के सिवा कोई नहीं बदल सकता। हम अक्सर यह सोच कर परेशान होते रहते हैं कि अगर हमारा मांगा हुआ किसी और को मिल गया तो, हालांकि अल्लाह पाक तो पहले से ही सब तय कर चुका है। यह भी कि आपको आपके नसीब से क्या मिलना है, और यह भी कि किन दुआओं ने आपके दिल का हिस्सा बनकर आपको आपका नसीब बदलना है। तो फिर आप क्यों इन वसवसों में फंसे हुए हो कि कहीं दुनिया हमसे हमारी चाह छीन न ले। आपकी दुआओं का मुहाफिज तो अल्लाह पाक है, और उसकी हिफाजत में किसी का लिखा हुआ किसी दूसरे को कभी नहीं मिल सकता। जो भलाई अल्लाह पाक ने आप तक भेजनी है वो आप तक हर हाल में पहुंचकर ही रहेगी। जो मोजिज़े अल्लाह पाक ने आपके लिए मुकर्रर किए हैं वो मोजिज़े से होकर ही रहेंगे। कोई भी इस होनी को नहीं टाल सकता सिवाय अल्लाह पाक के। जिस पर अल्लाह पाक ने हमारे लिए पहरे बिठा रखे हैं उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। अल्लाह पाक आपका इंतजार कर रहा है। यकीन जानिए यह दर्द का ढेर, अनगिनत आरजू, यह तुम्हारे गम और तुम्हारी हर दुआ का जवाब रात के 1/3 हिस्से में मिलेगा। तहज्जुद पढ़ने वालों की तो वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है जिनका जिक्र उन्होंने कभी अपने आप से भी नहीं किया होता। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह पाक को मनाती हैं ना तो खब हकीकत बन जाते हैं और ताबीर कुन में बदल जाती है। बात तहज्जुद की है तो जरा मोहब्बत से सुनिए। तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जो मोजिन की नहीं बल्कि दिल की अजान पर पढ़ी जाती है। फजर और तहज्जुद खामोश नमाज है, इनमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ अल्लाह पाक देखता है और सुनता है। तभी तो उनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं, तभी तो उनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। तहज्जुद में की गई दुआ बंद हुए सब दरवाजे खोल देती है। तहज्जुद में फर्श पर किया गया सजदा इंसान को अर्श पर अल्लाह पाक से मिलवा देता है। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ का है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह पाक से कुन कहने की सिफारिश करता है। यह भी किसी की मोजिज़े से कम नहीं कि रात की तारीकियों में अपने नरम बिस्तर से उठकर जब सारी दुनिया सो रही होती है और तुम जागकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, अल्लाह पाक से दुआएं करते हो, कुछ आंसू गिराते हो, कुछ दुआएं करते हो, अल्लाह पाक की बंदगी तारीख रात और तारीख कमरे में करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ रद्द कर दे। सिफा बन जाते हैं वो आंसू जो ताक रातों में बहाए जाते हैं। कौन कहता है अल्लाह पाक और एक पल में मुकद्दर बदल जाती है। तहज्जुद तक पहुंचना तुम्हारा बेवजह नहीं है, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की निशानी उससे बेहतर और क्या हो सकती है। यूं ही नहीं पा लिया तो तुमने तहज्जुद का सजदा, कुछ तो ऐसा नामुमकिन है जो तुम्हारे लिए मुमकिन होने वाला है। नमाज अगर मोहब्बत है तो तहज्जुद अल्लाह पाक से इसका एहसास है। अल्लाह पाक हमें नमाज वाली मोहब्बत और तहज्जुद वाला इश्क नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जब वो रात के आखिरी पहर तुम्हें मुलाकात के लिए बुलाता है तब वो तुम्हें अपने दर से खाली हाथ नहीं लौटाता। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे हटा दिए जाती हैं। तो फिर अल्लाह पाक ऐसे मोजिज़े करता है जो न कभी जमीन वालों ने देखे होते हैं और न आसमान वालों ने। तहज्जुद का खामोश सजदा और जार जार बहते हुए आंसुओं को वो कभी जाया नहीं करता। जब गुजारिश लाडली इबादत में की जाए तो लाडले की दुआ कहाँ अधूरी रह सकती है। कायनात जो भी कहे फिर वो होकर रहता है जो उसका बंदा उससे मांग लेता है। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है, बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो जख्म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भर नहीं सकते, और वो सब मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह पाक की इबादत और जिक्र करने के बाद बाकी सारे मामलात की तैयारी करने वाला शख्स उस बादशाह की तरह वक्त गुजारता है जिसने सल्तनत की भागदौड़ संभालने के बाद बाकी सारे मामलात का बकौर जायजा लेना शुरू कर दिया हो। नमाज तहज्जुद अल्लाह पाक के कुर्ब हासिल करने और अल्लाह पाक से राज और न्याज की बातें करने का बेहतरीन वक्त होता है। अल्लाह पाक को इंसान का नींद से बेजार होकर उसके सामने सजदा रेज होना और आंसुओं के मोतियों से अपनी इल्तिजा, अपनी दुआएं तलब करना बहुत पसंद है। यही वो वक्त होता है जब इंसान को मुकाम से नवाज दिया जाता है।
तहज्जुद का आगाज इंसान से तो हो सकता है मगर काम सिर्फ अल्लाह पाक है। दिल में उठती हुई मुसलसल तकलीफ जब रात भर जगाए रखती है तो रूह की बेचैनी अल्लाह पाक के रूबरू लाकर खड़ा कर देती है। फिर कुछ दर्द सुनाया जाता है और दुआ के लिए बेजान हाथों को उठाया जाता है। जब सारा गुब्बार बाहर निकल आता है तो सुकून की अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, जैसे सारे दुख किसी ने अपने अंदर जब्त करके रूह को आजाद कर दिया हो। अल्लाह पाक से की गई वो एक मुलाकात, वो एक गुफ्तगू सारी उलझने सुलझा। फिर मजाजी दुख नहीं, वो हकीकी मोहब्बत सोने नहीं देती। फिर रात को नींद अच्छी नहीं लगती, बस फिर अल्लाह पाक से मिलने की तलब रहती है। फिर दुनिया की ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं और अर्श वाले की लत लग जाती है। जब हार और जीत का फैसला अल्लाह पाक के हवाले कर दो तो नसीब से लगाई हुई सारी जंगें खत्म कर देनी चाहिए। इसलिए नहीं कि अब तुम कुछ बदल नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा यकीन तुम्हारे वसवसों से ज्यादा मजबूत है। उसकी मसलियत और वक्त की तरतीब न समझने के बावजूद भी जब तुम सब्र कर लेते हो तो वो सारी छुपी हुई हकीकत तुम्हें समझा देता है और फैसला भी तुम्हारे हक में सुना देता है। तुम जो मांगते हो वो उसे तुम तक आखिरकार खींच लाता है। वो तुम्हें अधूरा रखकर ही मुकम्मल कर देता है। वजूद के जिस हिस्से को वो खाली कर देता है उस खालीपन में वो खुद बसेरा कर लेता है। तुमसे जो छीना गया होता है वो हमेशा तुम तक लौट आता है। लकीर भी हाथ का साथ छोड़ देना, तब भी वो लकीरें बनाने वाला तुम्हें थामे रखता है। फिर तुम इस बात को समझो या न समझो तो तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना, मगर हाँ मुकद्दर के पीछे भी कभी मत भागना। बस यकीन रखना और इंतजार करना। जो लम्हे सब्र आजमाते हैं दरअसल वही कबूलियत के लम्हे होते हैं। तहज्जुद वो तमाम मौजज़े करवा सकती है जिनके मुतालिक दुनिया वाले कहते हैं हम आम इंसान हैं, हमारे लिए कहाँ होंगे ऐसे मौजज़े। वो शायद भूल जाते हैं कि वो रब मौजज़े करने पर कादिर है और वो हम आमों का भी रहमान रब है। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह पाक के रूबरू तरतीब से खड़ी होती हैं, जो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सिफत में होती हैं, वो सिफत जिसे अल्लाह पाक ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है। तहज्जुद की दुआएं तो उस कदर खास होती हैं कि उन्हें सुनने के लिए अल्लाह पाक बजाते खुद पहले आसमान की तरफ आ जाता है। उस पहर की गई फरियाद अर्श तक रसाई पाती है। और क्या तुम्हें नहीं मालूम कि खास मुलाकात खास मामलात में नवाज से भी खास हुआ करती है। तहज्जुद की दुआओं में कितनी ताकत है। तहज्जुद की दुआ इतनी ताकतवर है वो आसमान के पार जाते ही अल्लाह पाक से अपनी बात मनवा लेती है। तुम्हारा तहज्जुद तक आना भी एक मौजज़ा, जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले आई वो भी एक मौजज़ा है। और पता है तहज्जुद में जो तुम मांगोगे वो भी अल्लाह पाक मौजज़ों की सूरत में सुनेगा और तुम हैरान रह जाओगे। तुम पढ़ा करो और अल्लाह पाक से अपने दिल की हर बात किया करो। उस वक्त अल्लाह पाक हमारे बहुत करीब होता है। लाहासिल ख्वाहिशें और अधूरे किस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। जब बात तहज्जुद की दुआओं पर आती है, जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है, फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाह से नसीब तक का जो फासला है बस वो एक दुआ का है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह पाक से कुन कहने की सिफारिश करता है। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।